you need to put 2 lakhs or 3 lakhs into ads, and then 5 months it will take for us to come back. Okay. I don't see any ROI in that. No, it's not going to work out in that way. I'll just lay down the entire plan for you and the cost that would take for your brand to just start getting some orders to flow in for you, considering we are starting from zero altogether, right? Number one, forget the ad spend and whatever you have done so far. I think socials you guys are doing still fine. Socials you can continue. But what all things you would need in order to start some traction, start getting some traction flowing in for your brand? Ads, yes. Social media, yes. Some bit of influencer content also, and UGC content also, and I'll explain why as well. So we've worked with multiple brands, even the brand that we discussed earlier from Chennai. They have their photo shoot wala content also going live, but the same product when we run on ads, photo shoot wala videos or content versus ads from versus you have the same product being worn by an influencer and running that as an ad. The influencer content always turns out to perform better, and you do expect and you do get some sales out of those as well, if the product and the influencer pairing is genuinely well and people are able to connect with the same. If not, आपको traction नहीं आता. So studio content is required for your website and your social media, but वो आपको sales में help नहीं करता. You need your proper influencer content going, especially in the initial days, because you want to transfer the trust of the influencer onto your brand at the end of the day. UGC आपको help करता है कि not just famous people, क्योंकि people today कि famous people are being paid to wear products and promote products. UGC help करता है कि no, other people are also wearing your products and काफी लोग demand कर रहा है. UGC also being fair enough, a lot of people are aware कि people are being paid even for that, but for fashion I would still say it's a very personal choice at the end of the day. No one is going to wear a random product to an actual event that they are going to go. अगर content उस तरीके से curate किया है that it looks like that person is genuinely wearing your product for an event, like a get ready for me video for example from an unknown person, get ready for me for my cousin's wedding or for my sister's wedding. वो type of content काफी अच्छे तरीके से relatable भी होगा और उसमें subtle way में आपका product भी integrate हो जाएगा. ये 2-3 टाइप के कंटेंट आपने बनवाना फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर्स एज वेल एज योर यूजीसी क्रिएटर्स. नाउ बॉटम लाइन इसमें क्या आ जाती है, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज यू नीड अ इन्फ्लुएंसर फनल, लाइक और नॉट ऑल योर इन्फ्लुएंसर्स आर गोइंग टू बी a winner influencer for you, plus you need a winner product का pairing with the influencers as well, right? तो winning product आप कैसे निकालोगे, because this is a catch 22 situation here. Product influencer को पहनाओगे तो ही बिकेगा, बट कौन से इन्फ्लुएंसर को पहनाना है वो तो हमने पता ही नहीं है. तो इनिशियली यू विल बर्न मनी इन टेस्टिंग इन्फ्लुएंसर्स, यू विल आल्सो बर्न मनी इन आइडेंटिफाइंग विनिंग प्रोडक्ट्स फॉर योर ब्रांड. ना विनिंग प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके, आप एड्स के थ्रू चलाओ. अगर बिना इन्फ्लुएंसर के कंटेंट के कोई अगर प्रोडक्ट बिक रहा है, विच इनिशियली विल बी वेरी अनलाइकली कंसिडरिंग वी आर एट 500 फॉलोअर्स एंड लाइक सब 500 फॉलोअर्स, ट्रस्ट ऑन द ब्रांड इज लो एंड हम सीधा 15-20 हजार के प्रोडक्ट बेच रहे हैं. तो आप ये देख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट्स में एड टू कार्ट से इनिशिएट चेकआउट्स आ रहे हैं. और पैरेलली वी कैन हैव अनदर फनल गोइंग ऑल टुगेदर वेयर वी आर ड्राइविंग लीड्स टू योर व्हाट्सएप, जहाँ पे they are conversing with a actual person, so trust innately becomes higher compared to like directly purchasing from the website. तो आप वहाँ पे गॉज कर सकते हो कि कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स में उन्हें ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है. वी कैन देन शॉर्टलिस्ट दोज प्रोडक्ट्स एंड ड्राइव देम टू इन्फ्लुएंसर्स के. ठीक है, ये 3-4 प्रोडक्ट्स है आउट ऑफ 50-60 प्रोडक्ट्स दैट वी हैव जिसमें सबसे ज्यादा क्वेरीज आई हुई है. लेट्स सेंड दिस ओवर टू इन्फ्लुएंसर्स को पहना के फिर हम उन पर डायरेक्ट व्हाट्सएप सेल्स भी हम चला सकते हैं और आपकी वेबसाइट सेल्स फनल्स भी चला सकते हैं. व्हाट्सएप सेल्स आई ओनली रिकमेंड राइट नाउ एंड द इनिशियल स्टेज ऑफ ब्रांड्स, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट जनरेट करना इन द ब्रांड. एंड इफ यू नो दैट पर्सन इज जस्ट ऑन द पार, उनको अगर कुछ पुश दे दिया फ्रॉम अ डिस्काउंट पर्सपेक्टिव या समथिंग, ऑर्डर आ जाएगा, एटलीस्ट कैश फ्लो इन आना चालू हो जाएगा अपने लिए. दैट डिसीजन दैट यू एज अ फाउंडर कैन टेक और सेल्स पर्सन आपके साथ कोऑर्डिनेट करके ले सकता है. वेबसाइट पर देयर इज नो गुंजाइश ऑफ दैट. तो दैट इज अनदर थिंग दैट वी कैन गो फॉर. सो आपका इन्फ्लुएंसर बजट एक होना चाहिए, आइडियली 2 to 3 इन्फ्लुएंसर्स अ मंथ. जैसे ही हमें कोई एक विनिंग इन्फ्लुएंसर मिल गया, हम उन पे 2-3 प्रोडक्ट्स फिर आगे टेस्ट कर सकते हैं. अराउंड 3 to 5 UGC content creators a month.
यूजीसी में आपको यूजीसी विल ऑल्सो बी पेड यहाँ पे. आई थिंक जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स है इवन इन यूजीसी दे विल चार्ज एनीवेयर बिटवीन 5 to 10K a month. A video. Influencers might go between 30 to 50 और इवन a lakh. मैं बोलता हूँ लाख तक जाने की भी जरूरत नहीं है. 30, 40, 50 वाले भी इन्फ्लुएंसर्स काफी हद तक काम कर जाते हैं इन द इनिशियल डेज ऑफ द ब्रांड. सो आइडिया इज विद इन 3 months. So you have to consider a timeline of 3 months for this. 3 months आपने चलाया. 3 months में you have tested out about 9 to 10 influencers. You have tested out about 15 to 20 UGC creators. You have shortlisted के कुछ creators मेरे लिए काम किए. राइट. अब इसमें टाइप ऑफ प्रोडक्ट भी आ जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल इन अ पास्ट एक्सपीरियंस वी हैव नोटिस्ड कुछ क्रिएटर्स पे साड़ी अच्छी लगती है, कुछ क्रिएटर्स पे कुर्तीज अच्छी लगती है. आप मिसमैच करते हो वो जाता ही नहीं है. तो वो भी फिर क्रिस क्रॉस करके मिसमैच करके अपने को देखना है कि कौन से क्रिएटर पे कौन से प्रोडक्ट्स हम और लगा सकते हैं टू स्टार्ट ड्राइविंग मोर सेल्स. नाउ इन ऑल दिस प्रोसेस you have your ads funnel first month for your brand. As I said, brand content अपने को ज़्यादा चाहिए. brand content in the sense your story, founder background, collection story etc. उसके लिए एक certain budget अलग से allocate करना. Ideally जितना ज़्यादा उतना better. I would recommend about 30 to 50K purely on that because we need the brand to be out there and start gaining some traction there. Have one more funnel जो सिर्फ फॉलोअर्स गेन करने के लिए. सो योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स के वो इनेटली एक सबकॉन्शियस कॉल हो जाता है कस्टमर के माइंड में. लेट्स से यू आल्सो कम अक्रॉस ए ब्रांड जो 20,000 का प्रोडक्ट बेच रहा है लेकिन फॉलोअर 1,000 भी नहीं है, तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे वहाँ. तो वी हैव टू हैव अनदर लेयर फॉर दैट. अबाउट 45-50K फॉर दैट. सो 1,000-1,500 रुपए इवन फॉर दैट. यू गेट गुड ट्रैक्शन. अगर कंटेंट अच्छा है तो आपको फॉलोअर्स अच्छे खासे आ जाते हैं. वी नेवर रिकमेंड बाइंग फॉलोअर्स क्योंकि वो तो आपको ऑर्गेनिक रीच एकदम डेड कर देगा, तो वो कभी करना नहीं है. और ये भी जो मैं फनल बता रहा हूँ ये बूस्ट पोस्ट करके नहीं करना है, हमने एड्स मैनेजर के थ्रू ही लगाना है. एंड देन यू हैव योर traffic funnel to test out creatives in a cheaper manner and even products also for that matter. So let's say we have multiple collections. So what we can do is we can have multiple catalogs running, more multiple catalogs depending on each collection or category of products that we have to run on traffic and to see कौन से कैटलॉग में बेटर एंगेजमेंट आ रहा है, किस में हमें फनल एक्टिविटी दिख रही है. क्योंकि अगर ट्रैफिक पे हमें फनल एक्टिविटी दिख रही है, एंगेजमेंट दिख रही है, हम उसको जैसे कन्वर्जन पे लगाएंगे यू आर गोइंग टू गेट मच बेटर चांसेस ऑफ ड्राइविंग सेल्स फ्रॉम दैट सेम कैटलॉग और सेम कलेक्शन कमिंग इन. तो चीपर वे में एक आपकी टेस्टिंग हो रही है. एंड देन ये चीज में अगेन यू कंसिडर अबाउट 30K और 50K रुपीज का बजट अ मंथ. आपका 1.5 लाख रुपए फर्स्ट मंथ इसी में चलेगा. रिमेनिंग आप पकड़ लो 1 से 1.5 लाख रुपए इन टेस्टिंग. सो यू आर सीइंग एनीवेयर बिटवीन 2.5 to 3 lakh rupees on ads एटलीस्ट फॉर 3 months विच इज अगेन आपका बजट पहुंच गया रफली. अगर मैं कंसिडर करूँ आपका एड बजट, आपका इन्फ्लुएंसर बजट, एजेंसी फीस उसके ऊपर ऐड कर दूँ प्लस आपका सोशल मीडिया का आई एम नॉट श्योर व्हाट यू गाइस आर पेइंग. आप नहीं तो तकरीबन ऑन द अपर साइड 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट देख रहे हो फॉर द फर्स्ट 3 months where you'll start seeing the traction in the second or third month. बट कितना प्रॉफिटेबल है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पे मूवमेंट दिख रही है नहीं दिख रही है, वो सारा टाइम लग जाएगा. एंड there is also a likelihood like out of the 3 months that we have done, probably 1.5 month में भी आपको पता चल जाएगा कि out of the entire collection no product has the pull factor that we are looking for. सारे products में push factor है जहाँ पे we'll have to end up burning a lot of money. Then you might have to come up with a new collection altogether as well. And this is something which has happened with one of the brands that we have worked in the past. तो 2 महीने इन हमें समझ में आ गया था कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो काम नहीं करने वाले हैं. हमें कुछ नए प्रोडक्ट्स को लेके आना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड उसमें से हमने सेल्स ड्राइव करनी पड़ेगी कि यहाँ पे हम 2x तक ही लेके आ पा रहे हैं. वी आर नॉट एबल टू ड्राइव मोर प्रॉफिटेबल रोएस हियर. एंड इसको चाहे कितना भी हम पुश करें, आपको कंटेंट पे ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंसर्स पे ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोडक्ट आप दिमाग में बिठा के उसको पुश करना पाओगे. आवर ऑब्जेक्टिव मेनली इज डूइंग दिस एंटायर एक्टिविटी कि वो पुल प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना जहाँ पे थोड़ा सा भी स्पार्क दिख जाए, वो एक थ्रेड को फिर हमने पुल करना होता. सो मोटा मोटी 9 lakhs on ads. Agency fees, so bare minimum that we charge as an agency would be 50K a month. So 1.5 लाख रुपए एजेंसी के हो जाएंगे. That brings it up to 10.5. आप 50,000 रुपए का यूजीसी क्रिएटर का बजट फॉर द 3 months पकड़ लो, 1.5 लाख वो हो गया. और आपका 1 lakh to 1.5 lakh अगेन यू कैन कंसिडर फॉर influencer content again in the first 3 months. So that again jumps it up to about 1 lakh पकड़ोगे तो 3 लाख, 1.5 लाख तक जा रहा है तो 4.5 लाख.
सो 10.5, 12 एंड 3, 15 लाख रुपीज तक का आपका बजट जाएगा, प्लस योर सोशल मीडिया जो भी आपका जाएगा. Okay. Wow. I wasn't expecting a 15 lakh there. Yeah. आई नो, बट इसीलिए मैं एकदम क्लियरली ले डाउन किया और पहले मैंने आपको लॉजिक बताया हर चीज का, फिर मैं टोटल्स पे आया. ये लॉजिक समझोगे तो आपको टोटल समझ में आएगा. अब मैं टोटल बोलूंगा तो आप लॉजिक सुनोगे ही नहीं. Yeah. No. See, it makes sense. And, I was really able to understand whatever you were saying. So it makes sense.